व्यूअर्स, ये भी हिस्टोरिकल जो विलाग है, ये मेरी बुक ऑफ हिस्ट्री से ब्लड बात इन ईस्ट बंगाल एंड इकोनॉमी फॉर पाकिस्तान। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 56 की कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें इस्कंदर मिर्ज़ा जो था वो गवर्नर जनरल की बजाय उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया, प्रेसिडेंट का नया अहदा क्रिएट किया गया और उसमें 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी हद तक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बंगालियों को दी गई और बंगाली लैंग्वेज को स्टेट लैंग्वेज करा दिया गया, जो कि पहले उसको वेस्ट पाकिस्तान पावर एलीट ऐसा नहीं करना चाहता। नेक्स्ट हम इसी सिलसिले में डिस्कस करते हैं दी बर्थ ऑफ रिपब्लिकन पार्टी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द नॉमिनी ऑफ प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा डॉक्टर खान साहब एज चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान until he did not sign the membership of Muslim League, as Dr. Khan Sahib remained the Congress Chief Minister of NWFP. Dr. Khan Sahib refused to join Muslim League. So उसने कहा नहीं करता, Muslim League join नहीं करता. So Muslim League elected Sardar Bahadur as the leader of the Muslim League on April 2, 1956. लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा। एक लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहा, रूलिंग पार्टी का लीडर वो न बन सकता, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी थी अभी रूलिंग ये होगी। So Muslim League elected Sardar Bahadur as the leader of the Muslim League. In order to save the situation, Mirza, with the active blessing of the army, gave birth to Republican Party on April 23, 1956. The hand-picked governor of West Pakistan, Gurmani, played a key role in buying the loyalties of turncoats. ये जो उसको आप अक्सर लोटे का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, तो ये टर्नकोट होता है जो वफादारियाँ बदल जाते हैं। The hand-picked governor of West Pakistan, Gurmani, played a key role in buying the loyalties of the turncoat Pakistan Muslim League legislatures by offering lucrative post in the ministry, यानी उनको उसमें एडजस्ट किया जाएगा एज मिनिस्टर्स या मशीर। The majority of Muslim League legislatures shifted their loyalties without any thought that it will tantamount to the political death of the party. मुस्लिम लीग ने अपनी लॉयल्टीज चेंज कर दी, ये उनकी तारीख रही है कि हमेशा ऐसा करते आए। वो रिपब्लिकन के साथ हो गए, विच अंडर द लीडरशिप ऑफ ग्रेट लीडर मोहम्मद अली जिन्नाह वाज अ सोर्स ऑफ क्रिएटिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो वो पार्टी अभी तबाह हो गई। Second thought was developed in the minds of the sincere and serious common Muslim leaguers and patriotic citizens that first the existence of the Muslim League came to an end in East Pakistan, which had great repercussions on the country's politics. Now on the national level, the country's position was at stake. The same process of finishing the Muslim League was in practice in West Pakistan. Its base was East Pakistan, where its position came to an end, and now the West Pakistan also, the power elite was after its total annihilation. यानी इसका जो बेस था मुस्लिम लीग का ईस्ट पाकिस्तान था, जिसमें 1946 के इलेक्शन में उन्होंने मुस्लिम लीग को वोट दिया, टोटल पाकिस्तान बना, ये उसका बेस था। मुस्लिम लीग कान भी वहाँ, और अब वेस्ट पाकिस्तान उधर पहले ख़त्म हो गई, उधर कोई सीट न जीत सके। तो इधर अब इस साजिश के ज़रिए जो जीते हुए थे वो भी एक दूसरी पार्टी में चले गए। तो अब जिन्ना की मुस्लिम लीग नहीं रही, कुछ और ही बन गई। मुस्लिम लीग took birth in East Pakistan, it flourished in Pakistan, it proved to be a base camp of creation of Pakistan, as it won almost all the seats of 1946 elections. Muslim League was defeated and wiped out in 1955 elections from East Pakistan, which was a base camp of the Muslim League. Now there was no one to save it from total elimination. यानी ईस्ट और वेस्ट टोटली खत्म हो गई, annihilation on national level. As 26 out of 30 Muslim League legislatures shifted their loyalties to the newly created Republican Party of Iskandar Mirza. ये कितने अफसोसनाक और बहुत नफरत ज़दा बात है कि 30 में से 26 लोगों ने अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर दी टू गेट पावर, सम सॉर्ट ऑफ पावर। उसको वो जो साथी प्रेसिडेंट था इस्कंदर मिर्जा, उसके कहने पर। With this conspiracy, the real politics in the country practically came to an end with the delay of hardly 2 years
These 2 years were also due to the legislatures of East Pakistan, particularly due to the participation of Soharwardi, Fazl al-Haq and other East Pakistan leaders, and due to 1 year premiership of Soharwardi. सोहरवर्दी किसके बाद प्राइम मिनिस्टर बना, तो वो एक दौर था बस ये पार्लिमानी जमहूरियत का किसी न किसी शक्ल में कायम रही, उसके बाद कुछ नहीं था। द कंट्री देन फ्रॉम 1958 to 70 slept a deep slumber of non-political life, क्योंकि उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, मार्शल लॉ था। एंड व्हेन केम आउट ऑफ दैट स्लम्बर वाज डिवाइडेड थ्रू ए ब्लड बाथ इनटू 2 पार्ट्स। उसका रिजल्ट क्या बरामद हुआ कि ईस्ट और वेस्ट के लोग, पॉलिटिकल जो प्रोसेस होते हैं ना, इसमें लोगों का एक दूसरे के साथ रब्ता होता है, मीटिंगें होती हैं, किसी पॉइंट पर इज्तिमा होता है, किसी पॉइंट पर डिफरेंसेस होते हैं, फाइनली असम्बली आती है, असम्बली में कायदे इख्तलाफ होते हैं, इक़्तिदार होता है, बात होती है, ये एक बड़ा अच्छा प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर 10 साल तक ये प्रोसेस ख़त्म कर दिया गया, पॉलिटिकल लीडर्स को सियासत से आउट कर दिया गया, उनको गिरफ्तार कर किया गया, और अब 10 साल जब गुजरे तो देयर वाज नो रेमेडी। वो लोग भी चले गए, वो सोहरवर्दी भी न रहा, वो खान कयूम भी न रहा उस तरह ताकतवर, और नए लोग आ गए, उनकी अपनी इंटरेस्ट थी, और पाकिस्तान गया ख़त्म। ड्यू टू द इंट्रीग रिडन पॉलिटिक्स, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली चौधरी लेफ्ट द मुस्लिम लीग एंड आल्सो रिजाइंड फ्राम प्रीमियरशिप। मोहम्मद अली चौधरी एक सिंसियर आदमी था, और ये बाई चांस प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो वो इतनी इंट्रीज थी उसमें, मुस्लिम लीग तो रही नहीं थी, और दूसरी पार्टियां मैदान में आई, फिर ये अवामी लीग और कृषि सलामत पार्टी, कुछ इंडिपेंडेंट्स और ये थे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि सोहरवर्दी ग्रेट लीडर फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एज प्राइम मिनिस्टर। आज का विलाग इसी पर हम ख़त्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट। इसको सब्सक्राइब कर दें, इसको सुनना, सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।